Assalamu alaikum students. Today we will start the lecture of level sensors on industrial electronics. In this lecture, we will see that uh, which level sensor we will use in industry and which quantities we have to measure or what level we have to determine and in which units the levels are measured. Mostly, the measured medium can be in the form of liquid, gas, or solid, or stored in vessels. That those vessels could be open or closed tanks, mm, water tanks, soils, bins, and hoppers, etc. Different things we have to measure the level of their filling quantity, and the level can be expressed in different units like feet, meters, gallons, liters, pounds, kilograms, cubic volume per meter cube, per feet cube, and these units are used to measure the level of different liquid, solid vessels, etc. There are different methods to uh, determine the level of different things or different vessels or tanks or storing tanks. In these things, we can consider like and different inferential things are used, and those methods should be direct or indirect to measure the level. And in these methods, different things are used like hydrostatic head, float, load cells, magnetic level gauge, capacitance transmitters, magnetostrictive, ultrasonic, microwave, laser, radar, guided wave radar, dipstick, vibration. These different methods are used to measure the level of different things in different storing vessels. These two direct and indirect methods are categorized such as direct methods sense the surface or interface of the liquid and is not affected by changes in material density, specific gravity. And these direct methods are examples are dip stick, resistance tapes, sight glass, floats, ultrasonic. These methods are mostly and widely used in different industries and home applications. And these methods did not uh, faces any interferences due to the material density or gravity, etc. You can see in the resistance tape in figure and dipstick and different things which we used, and float is used in our also used in our home tanks and water coolers to fill the water in those uh, air room coolers, air coolers, etc. And these indirect methods, also known as inferential, indirect methods infer liquid level by measuring some other physical parameters such as pressure, weight, or temperature, and those measuring parameters are then calibrated according to the level of the vessel or tank or storage um, thing, anything which is used to store those materials. Changing material means a corrective factor must be used or recalibrating the instrument. इसलिए ये कहा गया कि अगर वो कोई भी मटेरियल चेंज होगा फिर इन इनडायरेक्ट मेथड्स में, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है उसकी दोबारा से रिकैलिब्रेशन करनी पड़ेगी ताकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो करेक्ट रीडिंग्स दे सके हमें। अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोस्टैटिक हेड मेथड है, लोड सेल्स हैं, कैपेसिटेंस है, कंडक्टिविटी है। ये मेथड्स हम यूज़ करते हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। इनके इनके थ्रू हम डिफरेंट तरह के लेवल्स हम मेजर करते हैं, उनकी क्वांटिटी मेजर करते हैं। इनके थ्रू हम उनको एक तरह से कह सकते हैं कि टेम्परेचर के थ्रू भी कैलिब्रेट करते हैं, उनके प्रेशर के थ्रू भी, और ये डिफरेंट जो हैं क्वांटिटीज़ उसके थ्रू हम इनको वेट के थ्रू भी मेजर करके फिर उनको कैलिब्रेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनका लेवल मेजर कर रहे होते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं इसमें प्रेशर इज ऑफन यूज एंड एज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लिक्विड लेवल्स,
प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ इंक्रीजेज इन अ फ्लूइड, कि जो प्रेशर है वो उसको भी हम इनडायरेक्ट मेथड के तौर पर मेजरिंग लिक्विड लेवल जो है उसका मेजर करने के लिए प्रेशर को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड का लेवल इंक्रीज होता है उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारे पास। हमें ये इसकी इक्वेशन भी गिवन है, P इज इक्वल टू ओमेगा H, P इज द प्रेशर is the specific weight and H is the depth, gamma is the measuring constant है जिसकी स्पेसिफिक वेट वैल्यू गिवन होती है हमें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक प्रेशर गेज लोकेटेड एट द बेस ऑफ एन ओपन टैंक containing a liquid with a specific weight of 13.6 kilonewton per meter cube registers 1.27 MPa. What is the depth of the fluid in the tank? नाउ अब हमें यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज दी गई हुई हैं, इन दोनों क्वांटिटीज को यूज करते हुए हमने उसका प्रेशर मेजर करना है। व्हाट इज द डेप्थ, सॉरी डेप्थ ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक, जो फ्लूइड है उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है। मीन्स यहाँ पे जो इस इक्वेशन में हमें एच जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो उसका प्रेशर भी हमें नोन है और उसकी जो गेमा की वैल्यू है वो भी हमारे पास गिवन है, तो हमने उसकी सिंपली एच की वैल्यू फाइंड करनी है। वो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इजीली इस फार्मूला को चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास एच किसके इक्वल हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू E over gamma. These quantities we can use and easily find out the value of the depth of the fluid which is used in the different जो कि हमने फाइंड करनी है वो हम इसको ये इक्वेशन यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। Again, simple side glasses are also used to measure the level of the any fluid liquid. A visual indication of the level can be obtained when part of the vessel is constructed from transparent material or the liquid in a vessel is bypassed through a transparent tube, and these different things are used to measure the level. The liquid level then can be observed directly in the sight glass, कि जो भी जो साइड ग्लास होता है जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आपको सामने क्लियर है कि उसको साथ स्केल अटैच कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका जो लेवल है वो मेजर करते रहते हैं साइड ग्लास के थ्रू। साइड ग्लास के ऊपर रीडिंग्स आ रही होती हैं, उस रीडिंग में जितना भी उसका लेवल होगा उसको हम उसके अकॉर्डिंगली मेजर करके देख रहे होते हैं। ग्लास गेजेस आर चीप बट ईजिली ब्रोकन एंड शुड नॉट बी यूज विद हैजर्डस लिक्विड। अब इसका एक साइड इफेक्ट भी यहाँ पे ये बताया गया कि जो बेनिफिट भी ये है कि ये एक तो चीप तो होती हैं लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, ये ब्रेक भी हो सकती हैं खासतौर पर लिक्विड के केस में, जैसे कि एसिड वगैरह का जब हमें ये मेजरमेंट करनी हो, लेवल वगैरह चेक करना हो, तो उस केस में अगर ये टूट जाए तो फिर कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है ह्यूमन बीइंग को इससे, तो इसलिए ये ज़रा इसको कम यूज़ किया। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टॉप वेल्व्स, stop valves also can be used like these shown in the figure. These are also the examples of side glass. Using stop valve with the use of a bypass pipe is the ease in the removal for cleaning, कि अगर वो साइड ग्लास के ऊपर भी हम उसको कनेक्ट करें तो जैसे यहाँ पे साइड ग्लास कनेक्टेड किया गया है एज अ बाईपास पाइप के तौर पे उसके साथ, तो इसके थ्रू भी हम उसका लेवल मेजर कर सकते हैं। इसकी भी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है कि इसका इतना लेवल होगा तो टैंक के कितने लेवल को ये इंडिकेट कर रहा होगा, इस तरह इसकी कैलिब्रेशन कर लेंगे तो उसके ऊपर हम स्केल को मेजर कर देंगे, तो फिर उससे हमें इजीली उसका पता चल सकता है कि कितना उसके अंदर लेवल जो है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह फ्लोट सेंसर्स भी यूज़ किए जाते हैं लेवल की मेजरमेंट के लिए। और फ्लोट सेंसर क्या होते हैं कि जो भी हमने लिक्विड वगैरह होता है उसकी लिक्विड की सतह के ऊपर एक फ्लोट जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, और जैसे जैसे लिक्विड का लेवल इंक्रीज होता है वो फ्लोट भी ऊपर मूव करता रहता है, और उसके साथ जो कैलिब्रेटिंग स्केल लगा हुआ होता है उससे हम इजीली उनका जो भी लेवल होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब these two types of loads
are shown in figure. uh, Angular arm and pulley. This is known as angular arm and this is known as pulley. These two float sensors are used for measuring the level of any liquid or sensing the level. The advantages of the float sensor are that they are almost independent of the density of the liquid or solid being monitored, are being are accurate and robust and have a linear output with level height. कि ये एक तो हम इजीली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी हमारे पास रीडिंग आ रही होती है वो लेवल के, और इजी होता है हमारे लिए इसको फाइंड आउट करना, और इसमें ऐसा कोई कम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती. One of the significant types of the float is a magnetron float level switch, which consists of a plain float and operates via a magnetic coupling action. लाइक शोन इन द फिगर, इसमें शो किया गया है कि जो मैग्नेट्रोल फ्लोट है उसको भी यूज़ किया जाता है लेवल को फाइंड करने के लिए, और फिर उसको जो मैग्नेटिक कपलिंग एक्शन के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है और उसके थ्रू हम उसका जो लेवल होता है और सेंस कर रहे होते हैं उसको फाइंड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. फ्लोट सेंसर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो यूज़ हो रही हैं, आगे से आगे इम्प्रूव भी हो रही हैं. ये फिगर में आपको नज़र आ रही होंगी, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं. ओके, I hope it's clear to your side. These top mount operating principle फ्लोट सेंसर्स जो यूज़ होते हैं, प्रोसेस लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है और उसके ऊपर जो एंगल आर्म होता है वो उसके थ्रू पिवट, रिटर्न स्प्रिंग, परमानेंट मैग्नेट, अट्रैक्शन स्लीव्स, स्विच मैकेनिज्म, नॉन मैग्नेटिक enclosing tubes are used in these types of float sensors. अब इसमें अगर हम देखें तो ये डिफरेंट तरह के राइजिंग एंड फॉलिंग लेवल के लिए शो किए गए हैं. अब इसी तरह मैग्नेटिक पिस्टन भी शो किया गया है जिसके थ्रू हम उसका जो लेवल है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं. वो जैसे यहाँ पे आपको ये फिगर में भी नज़र आ रहा होगा कि जो मैग्नेटिक पिस्टन है वो इसमें यूज़ किया गया है. मैग्नेट फ्लोट, बायस स्प्रिंग, पिवट और स्विचिंग एलिमेंट को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक पिस्टन के थ्रू उसका जो लेवल है वो फ्लोट के थ्रू मेजर किया जा रहा है. अब इसी तरह फिर ये फ्लोट बेस लेवल स्विचेस भी बनाए गए हैं, स्विच बना दिए गए हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट उनमें यूज़ होता है, वो फ्लोट के थ्रू ही जो रीडिंग है, जो लेवल है वो मेजर किया जा रहा होता है उसमें. अब इसमें डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पे देख सकते हैं. अब उसमें सबसे पहले डिस्प्लेसर स्विचेस भी हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं लेवल को मेजर करने के लिए. इन अ टिपिकल डिस्प्लेसर स्विच डिज़ाइन अ स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड विच इज़ burdened with weighted displacers. The displacers having weights greater than the process fluid gets submerged in the liquid resulting in a बाउंसी फोर्स चेंज. अब बाउंसी फोर्स चेंज के थ्रू वो जो भी हमारे पास वेट्स होते हैं ग्रेटर देन द प्रोसेस फ्लूइड्स गेट्स वो मर्ज हो रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली. जैसे कि यहाँ पे अब डिस्प्लेसर स्विचेस ये आपको फिगर में नज़र आ रहे होंगे, वो लिक्विड का जब लेवल राइज हो रहा है या जब वो लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको मेजर किया जाता है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसर स्विचेस हैं डिफरेंट ये यूज़ किए जाते हैं जिनकी जो स्विचेस हैं उनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली वो हम उसको देख रहे होते हैं. दिस विल, अब वो कह रहे हैं कि दिस विल कॉज अ वेरिएशन इन द नेट फोर्स ऑपरेटिंग ऑन द स्प्रिंग. इसमें जो स्प्रिंग यूज हो रहा होता है तो रिटर्न स्प्रिंग इसको हम कहते हैं, उसके ऊपर वो क्या कह रहा है कि जी फोर्स जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, वेरिएशन आ रही होती है उसमें. इन जनरल द स्प्रिंग विल कंप्रेस with the raise in bouncy force कि जो उसके साथ जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उस बाउंसी फोर्स के साथ इंक्रीज होने की वजह से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता हो जाएगा, और जैसे ही बाउंसी फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही होगी जब लेवल जो है वो फॉल कर रहा होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली अनकम्प्रेस हो जाएगा हमारे पास स्प्रिंग. जस्ट लाइक दैट
द फ्लोट लेवल स्विचेस के केस में जिस तरह हो रहा होता है कि उसमें फ्लोट लेवल में भी ऐसे ही हो रहा होता है कि जब वो फ्लोट अपवर्ड लेवल इंक्रीज हो रहा होता है तो फ्लोट अपवर्ड मूव कर रहा होता है और जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रहा होता है, और जब लेवल डिक्रीज हो रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो फ्लोट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो स्प्रिंग है वो उसकी जो टेंशन है वो रिलीज हो रही होती है और वो अनकम्प्रेस स्टेट में मूव कर रहा होता है। A magnetic sleeve and a non-magnetic barrier tube is also incorporated in displacer switches. These are the different things which is used in the displacer switches. The magnetic sleeve is attached to the spring and it moves according to the spring movement, resulting in activation of switching mechanism. अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक स्लीव है वो इस तरह अटैच की जाती है स्प्रिंग के साथ, एंड इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द स्प्रिंग मूवमेंट रिजल्टिंग इन एक्टिवेशन ऑफ स्विचिंग, जो उसका मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंगली वो मूव कर रही होती है। यहाँ पे आप उसकी फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक स्लीव है वो किस तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक स्लीव को, और जो भी उसका जो कंप्रेशन है स्प्रिंग की, और जो हमारे पास डिस्प्लेसर स्विचेस के थ्रू चेंज हो रही है उसके थ्रू हम उसको मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे ये फिगर में फिर उन्हीं मैग्नेट जो डिस्प्लेसर जो स्विचेस हैं उनको यूज़ करते हुए ये डिफरेंट जो लेवल सेंसर्स हैं ये बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट शेप्स में हैं, जो कि उसके अकॉर्डिंगली जो स्लीव्स हैं इसमें स्प्रिंग है उसके साथ और स्लीव के साथ उसका ये वेट्स जो हैं वो अटैच हो रहे होते हैं, डिस्प्लेसर स्विचेस यूज़ किए गए होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो लेवल है उसको मेजर किया जाता है। अब जो डिस्प्लेसर स्विच है इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जो कि हम बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है, जैसे कि फोमिंग और सर्जिंग लिक्विड्स में, एजिटेटेड फ्लूइड्स में, सेवेज हैंडलिंग में, डर्टी लिक्विड्स, पेंट्स, वार्निशेस, हैवी ऑयल्स, लिक्विड्स विद सॉलिड्स, ऐसी जगह पे जहाँ पे कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे मोस्टली हम ये जो डिस्प्लेसर स्विचेस होते हैं इनको यूज़ कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही रिलायबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनमें प्रॉब्लम्स बहुत कम आ रहे होते हैं, इस वजह से इनको ऐसे हार्ड और टफ जो लिक्विड्स हैं वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद लोड सेल्स आ जाते हैं हमारे पास। ये जो लोड सेल्स होते हैं इनको भी हम जो हमारे पास लेवल सेंसर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें अगर हम देखा जाए तो द वेट ऑफ द कंटेनर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल रीडिंग। अब अगर हम यहाँ पे देखें आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही होगी, इस इक्वेशन को अगर देखें तो v इज इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ, एरिया पाई आर स्क्वेयर के इक्वल होता है और डेप्थ जो है वो d है। अब ये r इज द रेडियस ऑफ द कंटेनर, एक कंटेनर है जिसको जो हमारे पास लोड सेल के थ्रू हम उसकी लेवल जो है वो मेजर करेंगे यहाँ पे, उसमें r जो है उसका रेडियस आ रहा है हमारे पास, तो उसका जो एरिया हो गया वो पाई आर स्क्वेयर के इक्वल हो जाता है, डी जो है उसकी टोटल डेप्थ ऑफ द मटेरियल, उस जो हमारे पास जो कंटेनर होगा उसमें जो मटेरियल होगा उसकी डेप्थ जो है वो डी से मेजर की जा रही है, और उसके ऊपर जो कंटेनर है वो डिफरेंट लोड सेल के ऊपर उनको प्लेस किया जाता है। द वेट ऑफ मटेरियल W इन अ कंटेनर इज गिवन बाय, जो वेट है उसका कंटेनर का W इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। वी क्या है हमारे पास, जो लोड सेल के थ्रू हमारे पास वोल्टेज जिसकी रीडिंग आएगी उसके थ्रू हम उसको मेजर करेंगे। अब इसमें वो कह रहे हैं द वेट ऑफ द कंटेनर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल रीडिंग लीविंग द वेट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर। अब जो वेट होगा वो कंटेनर का उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम जो टोटल रीडिंग आएगी, क्योंकि अब कंटेनर का जो वेट होगा वो तो हमें नॉन होगा पहले से, हम उसको वेट करके उसको एक एज स्टैंडर्ड रीडिंग के तौर पे अपने पास रखेंगे कि जब भी हमने किसी भी मटेरियल का जो है सेंसर करना हो लेवल वगैरह तो उसके हम जो भी उसका वेट होगा उसमें से माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो मटेरियल होगा उसके वेट की रीडिंग आती जाएगी। अब इसमें नोइंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक and the specific weight of the material, the volume and or the depth of the contents can be calculated। अब इसमें वो क्या है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा टैंक का वो भी हम पहले से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका रेडियस होगा और एरिया का मेथड फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर को इक्वल होगा, उसको यूज करते हुए हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और द वॉल्यूम एंड आर द डेप्थ ऑफ द कंटेंट्स भी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो साइड ग्लास
के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, या भी कोई भी जो हमारे पास कैलकुलेटिंग टेप्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ वेल सूटेड फॉर कंटिन्यूस मेजरमेंट एंड द मटेरियल बीइंग वेट डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द सेंसर। अब इसमें ये भी है कि वो जो भी मटेरियल है वो डायरेक्टली सेंसर के साथ इन कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, तो ऐसे जो लिक्विड हैं जिसके जो कि सेंसर को डैमेज करने का जिनसे खतरा हो, तो वहाँ पे हम ऐसे लिक्विड्स को लेवल और वेट वगैरह मेजर करने के लिए हम इन सेंसर को, लोड सेल को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें द लेवल जो भी होगा, डेप्थ उसकी होगी, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। उसके जो मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। द वॉल्यूम वी ऑफ द मटेरियल इन द कंटेनर इज गिवन। जो भी मटेरियल होगा कंटेनर के अंदर उसका वॉल्यूम जो है वो आपको गिवन होगा, और उस वॉल्यूम को यूज़ करते हुए हम उसको देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास उसका क्या लेवल आ रहा है, जो लिक्विड हमने वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें। इंडस्ट्री की भी डिफरेंट डायग्राम्स हैं आपको नज़र आ रही हैं। इसमें भी लोड सेल्स को यूज़ करते हुए आप देख रहे हैं, जो वाइट नज़र आ रहे हैं आपको, ये लोड सेल्स हैं, इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट जो रीडिंग्स हैं वो लिए जा रही हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द कंटेनर जो है इज, उसके थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें वेट आ जाएगा, वेट डब्ल्यू मटेरियल का होगा, वॉल्यूम भी होगा गिवन होगा, और इस तरह डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए हम उसका जो लेवल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे एक उन्होंने गिवन है हमें कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर, कि कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसकी क्या डेप्थ होगी, उसको हम किस तरह मेजर करेंगे। तो यहाँ कंटेनर, इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड इज 56 पाउंड पर फीट क्यूब, द कंटेनर वेज 33 पाउंड एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 63 इंचेस। अब यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, ना कि रेडियस। अब आपको पता है कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ए लोड सेल मेजर्स द टोटल वेट टू बी 746 पाउंड। अब यहाँ पे आपके पास उसका जो टोटल वेट आ गया वो 746 पाउंड आ गया है। तो अब यहाँ से आप टोटल वेट, अब कंटेनर का जो वेट है 33 पाउंड वो आपको नोन है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो उसका ये जो कंटेनर का वेट 33 पाउंड माइनस करेंगे तो आपके पास उसका जो मटेरियल होगा उसका वेट आ जाएगा, आपके पास मटेरियल का वेट आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम हमारे पास उसका डायमीटर गिवन है, उससे हम रेडियस फाइंड करके उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, और ये फार्मूला हमारे पास गिवन था पहले से ही। इस फार्मूला वी के थ्रू हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया इंटू सॉरी वॉल्यूम हमें गिवन है, एरिया क्रॉस डेप्थ, तो यहाँ से हम उसकी डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे जो भी हमारे पास लिक्विड होगा उसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ द लिक्विड W है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ चाहिए हमें, एरिया के लिए हम जो है वो डायमीटर यूज़ कर लेंगे, एंड वॉल्यूम के लिए वेट्स यूज़ कर लेंगे। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ गया तो उसको ये चीज़ें, एरिया भी होगा हमारे पास, तो फिर हम उनसे जो इजीली डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंडक्टिव प्रोब्स। जो कंडक्टिव प्रोब्स हैं वो यूज़ होती हैं किस तरह फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का लेवल, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह हम कंडक्टिव प्रोब्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ों का लेवल किस तरह मेजर करते हैं, और उसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस कर रहा है।